फिर तो मेरे वालों मेरी टीम ਅਤੇ मेरी परिवार वालों नवरात्रे ਅਤੇ दशहरे ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। जय श्री राम जी। मैं एडवोकेट अरविंद कुमार भकना पार्षद वार्ड नंबर 78 ਤੋਂ ਅਤੇ मेरी समूह टीम सतीश कुमार नंबर 78 तो जिन्ने भी ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਕਨਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, केतन सरपंच होर भी साथी आए आ। मैं सब दा अपने भला कलोनी ड्रामाटिक क्लब वालों समूह इलाका निवासियों वालों इस मंच से आने का तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करता हाँ, जी आयां नूं कहंदा हाँ। और जिस तरह काफ़ी सालों तो अरविंद जी भी साडी इस क्लब के नाल जुड़े आ, हर साल साडे बच्चों नूं आशीर्वाद देंदे हन और साडे सहयोगी भी हन। सो समाज की सेवा की तो लोगों ने इन्हों फतवा दिता और अगे काम जारी रखना पहला काम हुंदा लोगों ने जिताउणा। लोग चंगा जिहड़ा कैंडीडेट देखते हैं, उम्मीदवार देखते आ, उन्होंने जिताउंदे आ और दूजी वारी जिहड़ा जितना हुंदा वा वो साडे फिर काम बोलन, असी काम करके विखाईए, उस काम नूं वोट पैन तो फिर बंदा अपने आप नूं सफल ते कामयाब समझदा। सो मैनूं आस उम्मीद आ कि जिस तरीके नाल तुसीं काम करदे पए हो उस तरीके दे नाल तुसीं फिर अगली टनोर विच फिर साडे कारपोरेशन हाउस विच साडे साथी बन के लोगों की सेवा करोगे। हुण मैं एडवोकेट अरविंद कुमार भकना जी का बहुत थैंकफुल साडे कृष्ण कुमार नेता जी वालों, क्योंकि वो उन्हां दे परम मित्र ने भी। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय श्री राम जी, जय जय श्री राम। जिद्दां कि सब तो पहला तो मैं साडे वड्डे वीर सतीश कुमार बल्लू जी जिन्हां दी बदौलत अज असीं सारे इस स्टेज ते आए हैं। जिद्दां कि तुसीं सारे जानते हो पिछले बहुत सालों तो इस इलाके दे विच इस पार्क दे विच रामलीला दा मंचन किया जा रहा वा। मैं जिन्ने भी प्रोग्राम पिछले सालों तो इस इलाके दे विच जां अपने इलाके छाड़े दे विच देखदा वां, उन्हां दे विच सब तो वधिया सानू इत्थे आया नूं 1 घंटा सवा घंटा हो गया बैठे नूं, पर साडा उठण नूं जी नहीं करन दिया, क्योंकि इन्ना वधिया जिन्ने भी कलाकार इन्ने वधिया एक्टिंग ते इन्ने वधिया तरीके दे नाल मंचन करदे आ कि साडा ध्यान पूरी दा पूरा सारियां दा इधर ही लगा सी। सानू
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਮੰਚਨ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਰੀਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ 50% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਈਡੀਏ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤਾੜਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਏ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੰਬਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਵੀਨ ਪਕਨਾਈ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਕਨਾਈ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਦਾ, ਹੈਪੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦਾ, ਕੇਤਨ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਰਬਨ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਰਬਨ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ, ਹਰਮਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गुरुदेव कहो आर्य सुमन जी, और राज्य का क्या हाल है? हमारी प्रजा पर कोई कष्ट तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं? चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। प्रजा खुश पाया माल है, भगवान का सवा है।
आज से मेरी तबीयत कुछ उदास है। राजन, किस बात की उदासी है? गुरुदेव, रात को बात तो बड़ी मामूली थी, पर मेरे लिए रात काटनी एक सूली जैसी थी। अब अधिक देर मत कीजिए और इस कदर हमको बेताब न कीजिए। ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से कि आपके लिए एक रात काटनी सूली जैसी हो गई? कल रात मैंने बहुत भयानक सपना देखा। वो कैसा सपन था महाराज? मुझे भ्रम है कि मेरी प्रजा पर कोई मुसीबत आई है। आराम 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 आराम। ए महाराज दशरथ, दुआई तेरी और फकीरों का ध्यान, कोई गुजारा नहीं। प्रजा बिचारी क्या करे? तमाम आलम अधिक गा रहा है और उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो साधुओं के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यज्ञ रचाया था और उसे शैतानों से बचाया था, लेकिन ना जाने वो कहां से आ गए और हमारा क्रिया क्या रहा, सब कुछ नष्ट कर दिया और उसमें भूनकर मांस खाने लगे। अगर फकीरों का यहाँ ये हाल है तो दुनिया वालों का तो परमेश्वरी निगरान है। मेरे राज्य में ये अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी है। जब मेरी प्रजा को इस कदर मुल्हार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। आर्य सुमन जी, मैंने ये आपको कहा था ना, मैं उनका विनाश नहीं करता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत, और ना ही वहां बेटा राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों पुत्र खूंखार हैं और विद्या में मुनिवर, मुझे आपकी ये बात हर तरह से कबूल है, मगर आपकी ये हट बिल्कुल फिजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं? बच्चों को युद्ध में भेजूं
और खुद यहाँ मौजे मारा करूं। मुनिवर, वो तो अभी नादान है। हैरानी है मुझे कि रघुकुल में ऐसा कार पैदा हुआ है। तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। जैसे कहेगी वैसे बनाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे कार के सामने कभी नहीं आऊंगा। मुनिवर ठहरिए, मैं राजन को समझाता हूँ। राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते ही हो मुनि विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय हैं। अगर वो चाहते तो उनके लिए राक्षसों का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इसमें भी कोई भेद है। और राम ने तो राक्षसों को खत्म करने के लिए ही अवतार लिया है, और राम भगवान विष्णु का ही तो अवतार है। इसलिए आप राम और लक्ष्मण को गुरुजी के साथ भेज दीजिए और मुनिवर को नाराज मत कीजिए। गुरुदेव, मुझे तो पहले ही ये मालूम था कि आप उन्हीं का पक्ष लेंगे। यदि आपको मेरी तरफ से यही विचार है तो मुझे कब इनकार है। मंत्री जी, जाइए और राम लक्ष्मण को लेकर आइए। मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आओ आओ मेरे लाल। पिताजी, हमारी क्या आवश्यकता पड़ी? बेटा, मुनि विश्वामित्र जी को राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए मैंने तुम दोनों को दरबार में बुलाया है, क्योंकि हमारा धर्म मुनि, साधु, प्रजा सबकी सेवा करना हमारा प्रथम धर्म है। इसलिए तुम दोनों मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाइए और उनका यज्ञ सफल करो। लीजिए मुनिवर, मेरे हंसों की जोड़ी। लीजिए मुनिवर, लीजिए मेरे हंसों की जोड़ी, राम और लक्ष्मण। मैं आपको सौंपता हूँ। जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए तो मेरे जिगर के टुकड़ों को जल्दी अयोध्या भेज दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपके दोनों बेटे वापिस आ जाएंगे। जाइए मुनिवर, ले जाइए।
ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਭਗਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਮਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾੜਕਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ और खतरनाक ताड़का ਤੁਹਾਡੇ सामने आएगी। सो एक बारी जोरदार जकारा लगा दो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की जकारा है वीर बजरंगे। ते कल दी साडी नाइट बहुत ही बेहतरीन और प्यारी नाइट सीता स्वयंवर। मुनिवर, ये कौन सा मुकाम है? बेटा, ये बारिश और सबाऊ का मकाम है। यहाँ पर उनकी माता ताड़का वास करती है। मुनिवर, क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ हाँ बेटा राम, आला दर्जी की जालिम और बदकार है। परंतु गुरुदेव, अब हमें उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बेटा राम, मेरे ख्याल से तो जितना आतंक उसने मचाया है
उस आतंक को यहाँ से समाप्त करना चाहिए। तो चलिए गुरुदेव, अब हम आगे की ओर चलते हैं। नहीं नहीं, पहले इसकी पट्टी ठिकाने लगाते हैं। गुरुदेव, स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। ये आपका व्यर्थ ख्याल है राम। पापी को दंड देना इंसाफ ही इंसाफ है। वह सामने देखो, वह तमाशा करती हुई आ रही है। वो देखो लक्ष्मण, वो सामने से आ रही है। बुला रही है। लक्ष्मण, हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसी आज्ञा भ्राता जी। हमें इन राक्षसों का मलिया मेट कर देना चाहिए। जी भ्राता जी। आज कौन सा योद्धा जो मरीज के मुकाबले में आया है, जरा सामने आए और अपनी शक्ल तो दिखाए। खड़ा है सामने लक्ष्मण। खुलिए अपना देख ले मरीज, आज तू जिंदा यहाँ वापिस नहीं जाएगा। जो सामने मेरे आ गया अब वापिस नहीं पाएगा। इस युद्ध से मरीज तुझे यम लोक ही बच जाएगा। खड़ा है सामने लक्ष्मण, बलम अपना मिटा ले तू। जल्द आज वापिस नहीं जाएगा, चाहे जो भी शस्त्र तू चला रहे तू। लक्ष्मण, वीरों का मैं वीर महावीर कहलाता हूँ। तेरे जैसे छोकरे को अपनी उंगली पर नचवाता हूँ। अयोध्यापति का बेटा हूँ, मैं खेला हूँ जान और सितारों से। मरीज, मैं नहीं डरता तेरे ये तीर और तलवारों से। लक्ष्मण, ये लक्ष्मण की रट क्या लगाई है। धनुषर बाण से मुकाबला कर, फिर देखते हैं किसकी मौत किसको बुला रही है। आज
आसमान में उड़ते परिंदे और जमीन में रेंगते कीड़े सभी मुझे सर झुकाते हैं। लक्ष्मण, तेरे जैसे छोकरे मेरे पांव के नीचे दबाते हैं। सूरज, चांद, सितारे प्रभु राम पर फूल बरसाते हैं, तेरे जैसे इनके कदमों में शीश झुकाते हैं। लक्ष्मण, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण कब का होशियार खड़ा है और तुझको मारने के लिए इस रणभूमि में खड़ा है। मारीच, ये कोई मामूली मानव नहीं है। लक्ष्मण, मैं अभी इसे अपनी जान बचाने का कुछ तरीका निकालता हूँ। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि ये अब ताड़का के पास जाएंगे। अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसी आज्ञा भ्राता जी। कैसे पर्वतों पर चढ़कर आ रही है। भैया, देखने में तो ये बहुत ही खूंखार लग रही है। हाँ लक्ष्मण, ये बहुत ही खूंखार है। ना जाने ये कौन सी माया का चमत्कार करेगी। भैया, हमें होश
दूसरा रूप भी आ रहा है। जी भ्राता जी, ये तो पता नहीं अनेकों रूप आ रहे हैं इसके तो। भ्राता जी, ये कोई माया का चमत्कार है। हाँ लक्ष्मण, ना जाने इसने और कितने रूप बनाकर रखे हैं। जी भ्राता जी, ऐसे तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा असली रूप है, कौन सा मायावी है। भैया, ऐसे रूप हम कैसे पहचानेंगे? गुरुदेव, आप ही बताइए इसके कितने रूप हैं। बेटा राम, इसके बहुत ही मायावी रूप हैं। बेटा राम, ये एक रूप बदलती है तो दूसरा तैयार कर लेती है। जब तक असली ताड़का का वध नहीं होता तो ये रूप पे रूप बदलती जाएगी और उसकी पहचान विनाशकाली है। उसकी पहचान आपको स्वयं हो जाएगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, हम इसके सभी रूपों को समाप्त कर देंगे। आयुष्मान भव। भैया, पहले ये माया रूप का हमें सर्वनाश कर देना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, मैं तुमको कहता हूँ होशियार हो जाने के लिए। गुरुदेव, क्या इस मायावी ताड़का का अंत हो गया? नहीं राम, अभी इसका एक रूप बाकी है जो बहुत ही खूंखार है। गुरुदेव, ये तो अनेकों ही रूप बनाती चली आ रही है। बेटा लक्ष्मण, अब इसका ये आखिरी रूप है, तुम जरा सावधान रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, जरा सावधान हो जाओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी।
अपने दो मायावी रूपों से एक साथ आ रही है। हाँ हाँ भ्राता जी। लक्ष्मण, अगर हम इन दोनों को खत्म कर देंगे तो इसका मतलब हम ताड़का को अवश्य ही खत्म कर चुके होंगे। जी भ्राता जी। भैया, गुरुदेव को हमें किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए। गुरुदेव, इसमें अभी और भी मायावी रूप आएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञान है ये इसका अपना रूप नहीं है, ये तो इसकी माया की रुचि है और इसमें हम सबको मन माने के लिए माया रची जा रही है। नीचे बैठ जाओ, सारे नीचे बैठ जाओ, इतना माहौल चाल खराब हो सकता, नीचे बैठो सारे जी, सारे हाथ जोड़ के बेनती नीचे बैठ जाओ। अभी जी जो बैक साइड पे सारे नीचे बैठ जाओ जी, हाथ जोड़ के बेनती है नीचे बैठ जाओ।
भैया, इन सब ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। अब हमें इनका सर्वनाश कर देना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, हेलो, ताड़ का मेरा नाम है, कच्चों को चबा जाती हूँ, बस यही मेरा काम है। मैं तुमको कहता हूँ होशियार हो जाने के लिए। बढ़िया लक्ष्मण, तुमने उसका मलिया मेट कर दिया। बस अब हमें इन दोनों का मलिया मेट करना है। जी माता जी।
भैया देखते हैं ये कैसे उसका कटा हुआ आधा शीश लेकर कैसे घूमती फिर रही है और मक्कार है। तैयार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अब हमें इसका मलिया मेट कर देना चाहिए। जी भ्राता जी। ताड़का होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। भैया अब भी मुझे ये लग रहा है इसकी माया है। असली रूप तो वो देखिए भैया, बाकी और आ रहा है। वो देखिए भैया, वो देखिए, वो देखिए भैया, वो कैसे भागी हुई आ रही है। ये तो इसकी माँ थी। लक्ष्मण सावधान हो जाओ। भैया वो देखिए,
ये स्वयं अब आ गई है। इसकी माया से जरा सावधान होकर रहना, इसका खात्मा ही तुम्हारी विजय होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। भैया अब हमें गुरुदेव के दिव्य शस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे मौत की नींद सुलाना चाहिए भैया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण बेटा राम। देव की बहुत बड़ी माया है। शीघ्र अधिक शीघ्र लक्ष्मण को ढूंढो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। ढूंढ रहा ये है मेरी असली माया। अभी तक तो तू खेल खेल रहा था। ये है मेरी माया। लक्ष्मण। लक्ष्मण ಈ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ದರ್ಬಾರ್ ಹೊಡಿಪಾವೆ. लक्ष्मण। गुरुदेव, ना जाने इस बदकार ने कैसी माया रची है। नहीं बेटा राम, ठहरे से काम लो। ये दिल मिला रही है कि इसकी माया समाप्त हो रही है। गुरुदेव, भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया? बेटा राम, वो तुम्हारे सामने ही है, मगर वो नजर नहीं आएगा जब तक इसकी माया का जाल इसके चारों तरफ रहेगा।
तब तक लक्ष्मण अंतरिक्ष ही रहेगा। तुम इसकी माया के चक्रव्यूह को तोड़ो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आप गुरुओं के आशीर्वाद से जो शक्तियां मैंने पाई है, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। भैया लक्ष्मण, मेरे प्यारे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? भैया न जाने इन सब ने क्या सी माया रचाई थी, मुझे इस अग्नि के पीछे बंदी बना लिया था भैया। बस लक्ष्मण, अब बहुत हो चुका। अब इन तीनों का मलियामेट मेरे सिर्फ एक ही तीर से होगा। होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव, बेटा राम, आपने तो कमाल ही कर दिया। चलिए गुरुदेव, अब हमें आगे की ओर चलना चाहिए। चलो बेटा, चलिए। हेलो, ते आज दी साडी